Okay, ठीक है. So, good morning, all of you. In today's session, Good we are morning. going to discuss about the production and cost. But the first portion of this whole chapter is production. So basically, in this session, we basically concentrated on production area only, and hopefully in the next session we cover the cost also. So here we have uh, all the students of class 11th, and today the turn of presentation is Shreya Ford, who is now going to present his PPT on production. So let me invite, Shreya Ford for start their PPT. Okay, Shreya, let's start. Yes, sir. Good morning. My name is Shreya Singh. I'm student of class 11th and today I'm going to present my PPT on chapter 3rd of microeconomics, production and cost. So first of all, we will study about production and production function. What about they both are? So first, production is also known as utpadan. First by explaining, production is a process by which inputs are transformed into output, which means production is a process by which we transform inputs into outputs, through which we do production. विच मीन्स प्रोडक्शन एक ऐसा साधन है जिससे हम लोग इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करते हैं एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय प्रोड्यूसर्स और फ्रॉम प्रोडक्शन जो है वो उसके प्रोड्यूसर से और फॉर्म्स जैसे लेबर हो गए उससे कैरी आउट किया जाता है प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है लाइक लेबर मशीन लैंड रॉ मटेरियल. If we have to set up a company, we need labor, land, capital, machines. So these are the basic inputs that we need to produce the output. Now coming to production function. Really a relation between what output use output फंक्शन रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट में कि कैसा इनपुट यूज करके हमने कितना या कैसा आउटपुट प्रोड्यूस किया प्रोडक्शन फंक्शन में रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट का. ठीक है, आपने सही बताया. आप आगे बढ़िए. वेल डन. स्किप टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस सर. लास्ट में हम 5 to 10 मिनट्स का एक क्वेरी सेशन भी रखेंगे जिसमें आपके थोड़े बहुत डाउट्स हैं उसे हम क्लियर कर देंगे. अभी आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दे लीजिए. हाँ, ओके. Yes, sir. Now coming to the next topic, which is about the short run and the long run. So, first I will tell you the difference between short run and long run. In short run, uh, in the at least one factor, labor or capital can be varied, and and therefore remains fixed. In short run, only one factor can be varied. Which means either it is labor or capital. मतलब इसके जो सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वो वैरी कर सकते हैं एक फैक्टर्स इसका पर्टिकुलर जो वन फैक्टर है वो फिक्स्ड रहेगा इसमें सिर्फ एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है एंड लॉन्ग रन में रिसोर्स कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता है सारे वैरी कर सकते हैं एंड इन शॉर्ट रन एक फैक्टर या फिर एक वेरिएबल हमेशा फिक्स्ड रहेगा एंड इन लॉन्ग रन जो एक रिसोर्स या फैक्टर है वो एक भी फिक्स नहीं रहेगा in terms of definition in short run in this at least one of the factor either labor or capital can be varied and therefore remains fixed and in long run in
this all factors of production can vary. So in this there is no factor. There is no fixed factor. And one more important point, the long run and the short run do not refer to a specific period of time, such as 3 months or 5 years. So they don't have a specific times of a 3 months or 5 years. Or the main difference between the short run and long run is the flexibility. Decision makers have to change the quantity of resources being used. Which means that the quantity of the resources which are used must be changed timely. Now coming to next slide, which is product. We have three types of product: total, average, and marginal. First of all, we will discuss about total product. In this, it refers to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time, with given numbers of input. It is also known as total physical product or total return or total output. So total product जो है उसे और तीन नाम से हम जान सकते हैं, जैसे कि total physical product या फिर total return या फिर total output. It refers to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with given numbers of input. Okay, please carry on. Well done. Now, average product, it is defined as the output per unit of variable input. It is also known as average physical product. It is also the another name of average product is average physical product. और हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं output per unit of variable input. Now coming to the marginal product. अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट. अब हम लोग इसे डिफाइन करेंगे जो चेंज होगा आउटपुट में विद कंपैरिजन टू चेंज इन इनपुट के अदर जो भी इनपुट्स हैं वो कांस्टेंट रखे गए हैं, और इसको हम लोग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं. जैसे एवरेज प्रोडक्ट को हम लोग एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, उसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. और इसकी एक और डेफिनेशन ये हो सकती है. फर्स्ट डेफिनेशन इज दिस कि इट चेंज the rate of output change relatively with the input when all the when all the inputs are held constant. ये फर्स्ट डेफिनेशन है और इसे हम लोग एक ऐसे सेकंड तरीके से भी समझ सकते हैं. It also refers to the addition to total product when one more or more unit of variable factor is employed. इसका फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोडक्ट इज नोन एज टीपी एन ए टर्म माइनस टीपी एन माइनस वन ए टर्म. अब मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी एन क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें ये सारी वैल्यूज यूज होगी. अब nth टर्म पे कोई भी वेरिएबल आ सकता, कोई भी नंबर आ सकता है, either 1 2 3. तो whenever we have to find marginal product, so we will use this formula. mp nth term is equal to tp nth term minus tp nth minus first term. Total product of nth unit tp n minus 1, total product of n minus unit of variable factor, and nth is number of units of variable factor. If tp nth टर्म पे अगर वो n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो जो माइनस करेंगे tp n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा. कभी भी tp मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे जो फर्स्ट टोटल प्रोडक्ट रहेगा, अगर वो 2 रहेगा तो
जो सेकेंड टीपी माइनस करेंगे n-1 वो हमेशा उससे एक कम रहेगा क्योंकि हमें उसमें हमेशा 1 माइनस हो रहा है। अगर उधर 3 है तो यहाँ पे 2 रहेगा। यार थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो करिए, यू आर मूविंग सो फास्ट। सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ वेरी क्लैरिफाइंग मैनर, बट जस्ट ट्राई टू मेक योर स्पीड लिटिल बिट स्लोअर। ओके ओके सर। सो वही मार्जिनल प्रोडक्ट में हमेशा हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे और जो मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा उसमें हमें दो बार 2 टीपी चाहिए, एक टीपी जो टोटल प्रोडक्ट का है और टीपी एक वेरिएबल का। तो जो nth टर्म दिया है वहाँ पे n लिखा है। अब क्वेश्चंस में वहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, आइदर 1 2 3। तो हमेशा जो टीपी फर्स्ट है -1 वो हमेशा उससे एक कम रहेगा। फर्स्ट में 3 है तो वहाँ 2 रहेगा, 1 है तो 0 रहेगा, 2 है तो 1 रहेगा क्योंकि हमेशा वो -1 हो रहा है। एंड now graph of all the products. First in first graph there is shown AP, TP and MP, quantity of variable input, average product, marginal product and total product. And in second graph TP and MP. In second graph it is shown that TP is maximum and MP is 0. The value of MP is 0 means MP is minimum and average product is in middle which means it is normal. TP जो है वो highest पे है, marginal product means minimum है, सबसे कम होगा, TP average है and AP जो है वो एवरेज है, दोनों के बीच में है, ना वो ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश कर रहा है, वो सब मिनिमम पॉइंट पे है। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और फिर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम जाके फिर उसका स्लोप नीचे आ रहा है। एमपी जो है वो एक रेंज एक पॉइंट पे हाई हो रहा है, उसके बाद वो एकदम डिमिनिश करके एकदम मिनिमम हो जा रहा है। एवरेज प्रोडक्ट है वो कहीं पे हाई हुआ, उसके बाद हल्का सा मिनिमम होके फिर वो अपना कर्व ले रहा है ऊपर की तरफ मैक्सिमम की साइड। सर टीपी और एमपी का रिलेशन आप यहीं पे शो कर रही है या इसके बाद कोई और स्लाइड भी है जिसमें आपने अलग से शो किया है? यस सर। टीपी एमपी के रिलेशनशिप को आपने कहीं और भी शो किया है किसी और स्लाइड में, या इसको आप इसका रिलेशनशिप पूरा यहीं पे डिफाइन करेंगे? दैट्स आई वांट टू नो। नो सर, स्लाइड नहीं है, ये जो सेकंड वाला ग्राफ है उसी में शो किया है टीपी और एमपी के उसको। ओके, तो आप इसके रिलेशनशिप को टीपी और एमपी का रिलेशनशिप, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी इज वेरी इंपॉर्टेंट as per your examination point of view also. So try to clear it in a more minute manner. थोड़ा सा और minutely उसको explain करिए टीपी और एमपी के रिलेशनशिप को। एपी is not very much important but आपने उसको show कर दिया, that's good, but the relationship between TP and MP is more important. So please explain it The once again. relationship between TP and MP is also explored through the law of variable proportion. Yes, law of variable proportion. That's why I am asking that आप इसको कहीं और explain करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पूछा। Yes sir, clear, yes sir. हाँ ओके ठीक है, फाइन, देन गो अहेड। ठीक है, ठीक है, आप आगे एक्सप्लेन करिए। Yes sir, so we can also explain the relationship between TP and MP through law of variable proportion. So first of all I would like to explain the relationship. So as long as the TP increase at an increasing rate, the MP also increases. This goes on till MP reaches maximum. When TP increasing at a diminishing rate, MP declines. I would like to repeat it again. TP increases at an increasing rate, then MP also increases. This goes on till MP reaches maximum. When TP increases at a diminishing rate, MP declines. This is because MP is an addition to TP. If TP increases even when MP is decreasing.
अगर एमपी डिक्रीज होगा तो भी टीपी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि एमपी जो है वो टीपी में एडिशन टू टीपी होता है। एमपी इज एन एडिशन टू टीपी। सो टीपी इंक्रीज तभी भी इंक्रीज करेगा जब टीपी तभी भी इंक्रीज करेगा जब एमपी डिक्रीज करेगा। और एट अ पॉइंट टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम, जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है, मतलब जब टीपी अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, तब एमपी जीरो हो जाता है। एट द पॉइंट वेयर टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू जीरो। और जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस, और इसी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, और उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जब टीपी अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है तो एमपी जीरो हो जाता है, और इसी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे चला जाता है। एंड आफ्टर दिस पॉइंट एमपी बिकम्स नेगेटिव, और इस पॉइंट पे जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है एमपी की वैल्यू, मीनिंग दैट टीपी इज फॉलिंग। और जब एमपी की वैल्यू नेगेटिव होने लगती है तो उसी टाइम पे टीपी फॉल करने लगता है। इसके पहले का जो टीपी और एमपी का ग्राफ था, जिसमें तीनों थे, उसमें हमने देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट एकदम नीचे था, टीपी अपने मैक्सिमम पे था, उसके बाद वो कर्व हो गया था, वो नीचे आने लगा था, क्योंकि एमपी की वैल्यू नेगेटिव हो गई थी। जब एमपी की वैल्यू जीरो होती है, विच मीन्स टीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, मैक्सिमम पे है। लेकिन जब टीपी नीचे आने लगता है, मतलब एमपी की वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है। Then law of variable proportion. Law of variable proportion state that as we increase quantity of only one input, keeping other input fixed, total product initially increases as an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. It is also known as law of returns. तो law of variable को हम लोग law of returns के थ्रू भी जानते हैं। अब इसके 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, जिसमें वेरिएबल इनपुट टीपी एंड एमपी के थ्रू होता है। इसमें एपी का उतना कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, तो स्टेजेस में मेन टीपी एंड एमपी ही है। फर्स्ट स्टेज है जिसमें टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, और एमपी भी इंक्रीज होता है। पहले रेट पे टीपी इंक्रीज होगा, एमपी भी इंक्रीज होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, और एमपी जो है वो डिक्लाइनिंग चालू हो जाती है। इसके बाद एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड टीपी फॉल्स। तो अभी जैसा मैंने बताया कि जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी का जो स्लोप है वो फॉल होने लगता है। सबसे पहले स्टेज पे जब टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, तो एमपी भी वहाँ इंक्रीज होता है। सेकेंड स्टेज पे टीपी इंक्रीजिंग रहता है डिमिनिशिंग रेट पे, और एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, यानी एमपी नीचे आने लगता है, विच मीन्स उसकी वैल्यू जीरो होने लगती है, और टीपी इंक्रीज होता है अपने डिमिनिशिंग रेट पे, विच मीन्स वो अपना मैक्सिमम पॉइंट टच करेगा, और यहाँ पे एमपी जीरो पे आएगा। और थर्ड स्टेज में जहाँ की एमपी एक्स एक्सिस को क्रॉस करके उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और टीपी भी फॉल होने लगता है, टीपी का भी स्लोप नीचे आने लगता है। ये फर्स्ट जो डायग्राम लेफ्ट साइड में था उसमें ये दिया हुआ है, एंड जो राइट साइड में है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसमें बता रहा है, अमाउंट ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें दिखा रहा है। सारे स्टेजेस को थ्रू ग्राफ एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट स्टेज में क्या इसमें टीपी एपी एमपी तीनों दिखाए गया है। जो लेफ्ट साइड में फिगर थे उसमें सिर्फ टीपी और एमपी की बात की गई है। एवरेज प्रोडक्ट जो वो नॉर्मल उसका है वो उसी रेट पे रहेगा, वो ज्यादा उसमें यूज नहीं है लॉ ऑफ स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टीपी फर्स्ट स्टेज में जो टीपी अपना इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज पे टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है और एमपी नीचे आना चालू कर रहा है, विच मीन्स वो उसकी वैल्यू जीरो हो रही है। और थर्ड स्टेज में हम देख रहे हैं कि टीपी एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नेगेटिव में चेंज हो रहा है, एमपी एंड टीपी भी फॉल करना चालू हो रहा है, मतलब टीपी भी का भी स्लोप नीचे आ रहा है। ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड, वेल डन। इट्स सफिशिएंट। आप अब इसके आगे बढ़िए। Yes, sir. So, अब law of diminishing returns.
सो इसमें भी ग्राफ के थ्रू समझाया गया। दो ग्राफ है, एक लेफ्ट साइड में पहले डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका इसे हम और एक नाम से बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। In this states that when more and more input of variable factors are employed with a fixed factor, then marginal product of the variable must factor must fall. It means when marginal return diminish, then proportion between variable and fixed factor decrease. Um, I would like to repeat it again. It states that ये बताता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा input, when more and more inputs of variable factor are employed with a fixed factor, then marginal product of the variable factor must fall. मतलब जब more and more inputs variable factor के employ होंगे और वो fixed factor होंगे, fixed variable होंगे, जो MP हमारा है वो must है उसका fall करना, वो must है fall करेगा। अब ये जो हमारे दो डायग्राम्स है उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। इसका फर्स्ट है, 3 स्टेज में ये भी डिवाइडेड है। 3 स्टेजेस में सबसे पहले मोस्ट प्रोडक्टिव रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। In most productive returns, here our input leads to productive returns. T pays to invest more time, effort. मतलब यहाँ हमारा जो इनपुट है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ये it pays to invest more time and effort. इस टाइम पे जो हमारा इनपुट है वो टाइम ज्यादा देगा, एफर्ट अपना ज्यादा लगाएगा, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो बहुत बेटर आए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आए। इस टाइम पे इनपुट हमारा प्रोडक्टिव होता है, जो कि हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स में each added input leads to a decreasing rate of output is best shown somewhere within this phase. This means each added input leads to a decreasing rate. Okay, continue. You are going well. Good. ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न में सिंपली आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने फर्स्ट स्टेज को बताया, इट इज मोस्ट प्रोडक्टिव एंड द सेकंड इज डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न सिंपली मीन बाय at the stage where the TP also starts TP is at their maximum point and MP starts decreasing. This is the diminishing return. Okay, मतलब कि यहाँ से प्रोडक्शन जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, इसलिए इस स्टेज को डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। इज इट? ठीक है। And we can explain it with example। अगर एग्जाम्पल लेके समझाएं कि मतलब शॉर्ट टर्म में या किसी को ना समझ में आए कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता क्या है, तो वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ अ फार्मर। लेट अस कंसीडर अ कॉर्न फार्मर और एनी अदर थिंग, पोटैटो फार्मर or corn farmer with 1 acre of land. In addition to land, other factors including quantity of seeds, fertilizer, water and labor. As we increases the amount of fertilizer, the output on corn will increase। मीन्स जैसे जैसे हम लोग इनपुट का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करेंगे, वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, लैंड ज्यादा रहेगा, अदर फैक्टर्स जैसे क्वांटिटी ऑफ शीट्स अगर ज्यादा रहेंगे, फर्टिलाइजर, वाटर, अगर लेबर ज्यादा रहेंगे तो वो ज्यादा जल्दी काम करेंगे। सो एज वी इंक्रीजेस द इनपुट वी गेट output also increases. So as we increase the amount of fertilizer, the output of corn will increase. So how the marginal product get diminishes here? आपने जो एग्जांपल दिया उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में आपने नहीं कुछ बताया, दोबारा रिपीट करिए। So let us consider a farmer, a corn farmer, with 2 acre of land. In addition to land, other factors including quantity of seed, fertilizer, water, labor. So as we increases the amount of fertilizers, labors and other inputs, the output of corn will also increase. ठीक है। देन अगेन उसके बाद अगर हम बार बार उसी सेम लैंड पे और ज्यादा फर्टिलाइजर्स और ज्यादा हम इनपुट डालते रहेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक लेवल के बाद डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट तो आपका बढ़ेगा लेकिन Yes, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए आगे बताइए।
third stage negative return. Yes, sir. Third stage negative returns never get here. Not only do you not get a return for your effort, yes, sir. ठीक है, आगे सिंपली यहाँ से टीपी डिक्रीज करना शुरू कर देगा और एमपी जो है वो नेगेटिव में है, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव रिटर्न हो गया। दैट्स इट। ठीक है, यस सर। चलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को एक बार और एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये जो सेकेंड ग्राफ है उसमें 3 स्टेजेस सर, ये फिगर बताइए, आपने इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, उसको आप एक बार और रिपीट करिए। यस सर। और जो हमारे जो लिसनर्स बैठे हैं वो लास्ट में उनको मौका मिलेगा कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकें। सो आशा, वैशाली, आर यू लिसनिंग और नॉट? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शंस चेंज होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस, या फिर वो कॉनकेव जो होता है वो ऊपर जाएगा टू बीइंग डाउन, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम बीइंग कॉनकेव अप टू बीइंग कॉनकेव डाउन, या फिर वाइस वर्सा, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जहाँ से स्लोप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप इस यस बात सर। को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पॉइंट से जब ये कर्व और ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो बेसिकली ऊपर जा तो रहा है, लेकिन उसका डिमिनिशिंग जो है वो फेज शुरू हो चुका है। वो धीरे धीरे डाउनफॉल की स्टेज पे ही जा रहा है। वो बढ़ रहा है लेकिन वो टीपी बढ़ रहा है। टीपी तो यस सर। आपने जो पॉइंट एच जो शो किया है, इस एच तक बढ़ रहा है पॉइंट, लेकिन वो बढ़ किस रेट से रहा है? वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले सर। वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद यस सर। वो इंक्रीज किया है, लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज किया है। इसीलिए इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, कैरी ऑन। एंड सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को इस एडिशनल डेफिनेशन ये भी है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal returns state that adding an additional factor of production results in a smaller increase in output। जो हम लोग अगर additional factor अगर हम लोग production में use कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत increase करेगा हमारे output जो आने वाला है उसमें। if अगर 1% आउटपुट आने वाला है तो वो 1.5% इंक्रीज करेगा हमारे आउटपुट को। अगर हम लोग कुछ मीन्स अगर हमने एक फील्ड में कॉर्न या फिर किसी भी चीज का प्लांट लगाया, उसमें हम पानी दे रहे हैं, अदर शीट्स लगाए हैं हम लोग, टाइम टू टाइम वो उसको चेक कर रहे हैं। अगर हमने उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर ऐड कर दिया या फिर कोई भी मैन्योर या फिर मैन्योर ऐड कर दिया या फर्टिलाइजर ऐड कर दिया, तो जो हमारा आउटपुट है वो आने वाला है वो उससे थोड़ा सा उसके अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा इंक्रीज नहीं, इट विल गिव अ स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, योर एक्सप्लेनेशन एंड योर एग्जांपल इज फाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू हैव 10 मिनट्स मोर। आप 10 मिनट में से वाइंड अप करिए 10 मिनट से पहले, ताकि हम कुछ लास्ट के 2-3 So, मिनट में कुछ क्वेरी। so, so you have said to prepare till only law of diminishing returns. अच्छा अच्छा, ये यानी कि फाइनल आपका लास्ट स्लाइड थे ना ये? Yes, sir. ओके, जस्ट वेट, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, चलिए। ये दिस इज योर लास्ट स्लाइड, तो इट इज कंप्लीट आई Yes, थिंक। sir. ओके, Yes, sir. तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेरी सेशन। थैंक यू सो मच Yes, फॉर sir. हैविंग such a Thank you, wonderful sir. presentation, Shreya. And I hope that all the other students who have been joining here now are listening all the explanation in a careful manner, and they would try to take help in order to understand the whole chapter. और अगर उनको कोई और प्रॉब्लम होती है तो हम फर्दर भी इसके ऊपर और क्लासेस लेंगे अभी।
बट अभी इस एक्सप्लेनेशन के बीच में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अभी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, Yes, sir. आशा एंड वैशाली, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू मे प्लीज आस्क। आशा, आशा एंड वैशाली, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. आशा, वैशाली, Yes, sir. वैशाली, आपने प्रेजेंटेशन देखा श्रेया का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हाउ इज इट वाज, कैसा था? Fine. फाइन। तो नेक्स्ट टर्न आपकी है कल। Yes, sir. आर यू प्रिपेयर्ड? Yes, sir. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज प्रेजेंटेशन। आशा, Yes, sir. आपने देखा प्रेजेंटेशन, समझ में आया? Yes, sir. इसमें Yes, sir. चैप्टर में अगर और कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकती हैं। वैशाली के बाद आपकी टर्न रहेगी डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? अभी आप श्रेया फर्स्ट स्लाइड पे जाइए अपने, कम टू द फर्स्ट स्लाइड। Yes, sir. और आप लोग अब स्टार्टिंग से देखिए, कोई डाउट आपको इसमें हो तो आप वो पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी you may ask to Shreya and I will also help you to clarify. Otherwise, I will ask some questions to you. चलिए आशा, आप कोई क्वेरी है तो आप पूछिए। एनी काइंड ऑफ क्वेरी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ भी गई है तो भी आप पूछ सकते हैं, बट एटलीस्ट यू आस्क समथिंग। ये जो सेशन इस तरह के अरेंज किए जाते हैं, ये इसीलिए अरेंज किए जाते हैं कि इसमें ग्रुप डिस्कशन भी हो सके हमारा, ठीक है? आप क्वेरीज रेज करेंगे, जो प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटर वो उसको क्लैरिफाई करेगा, तो वहाँ पे फिर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। चलिए आशा, आप कोई भी एक क्वेश्चन रेज करिए, भले ही वो आपको समझ में आ गया हो, दैट डजंट मैटर। श्रेया उसका आंसर देंगे आपको। पूछिए पूछिए, कम ऑन फास्ट। वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग स्कूल में डायरेक्टर साहब को सेंड की जाएगी, तो आप लोग अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेटर रखिए। सर ये जो डायग्राम है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यस यस, सर और एक्सप्लेन कर देते। ओके ठीक। श्रेया, are you able to explain it once again, the diagram presentation, the process of production? हेलो हेलो, यस सर। वो हाँ, किसी की कॉल आ गई थी तो बीच में कट हो गया था। प्लीज no, repeat your question. there is no any problem. Asha is asking about the explanation of this figure, the process of production which you have been drawn here. So please explain it once again. ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो आपने बनाया है, इस वाले फिगर को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर। हाँ, कम ऑन फास्ट, 2 मिनट्स हमारे पास। हाँ हाँ, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, वी हैव ओनली 7 मिनट्स। चलिए। यस सर। हम्म, So Asha, as I already said, कि जितना प्रोडक्शन में क्या होता है, लोग इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट बनाते हैं। तो जैसे दिया है, 2 एरो बने, इनपुट्स आउटपुट। अब इनपुट्स के सामने कार हुई है, लेडी के सामने हाउस, के सामने फूड, एंटरप्रेन्योरशिप के सामने कंप्यूटर्स, तो सब एक दूसरे मतलब सामने सामने मैच नहीं कर रहा है। वो एक तरह से एक इनपुट्स की लिस्ट है और एक आउटपुट्स की। अब कंसीडर हमें हाउस बनाना है और आउटपुट हमारा हाउस है। अब उसमें इनपुट हमारे क्या लगेंगे? इनपुट हमारा लैंड लगेगा, लेबर लगेगा। तो उसी तरह जैसे लेबर रहेंगे तभी हमारे हाउस को सेटअप करेंगे। लैंड चाहिए, हमें कुछ मशीन्स चाहिए अगर हमें ड्रिलिंग करानी है हाउस की, या फिर जो भी चीजें हैं, तो हम लोग इनपुट यूज करके आउटपुट। अब हमें कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल ग्रो करना है तो उसके लिए हम लोग क्या इनपुट यूज करेंगे? उसके लिए भी हमें फील्ड चाहिए, लेबर चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वीडीसाइड्स चाहिए। ये सारे हमारे इनपुट हो गए और ये फाइनल हमें क्रॉप
मिलेगा जिसे हम लोग सेल करके अर्न करेंगे, या फिर अगर हाउस का एग्जांपल ले तो जो हमें फाइनल हाउस मिलेगा जिसमें हम लोग रहेंगे, वो हमारा मेन आउटपुट हो जाएगा और इनपुट हो जाएगा, जो कि उसे बनाने में चीज़, जो उसकी बेसिक चीज़ उसको खड़ा करने में या उसे बनाने में लगी है, वो इनपुट्स हो जाएगा और उसके बाद आउटपुट। यही बीच के काम को, जो इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट में, उसी को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। ये प्रोड्यूसर्स करते हैं या फर्म्स करता है। हमें घर बनवाना है तो ऐसे लेबर करेंगे, या फिर फार्मर ग्रो करते हैं, ये तो इस टाइम हम लोग फार्मर्स को या जो भी इनपुट उस हिसाब से, काम के हिसाब से, उन लोग को हम प्रोड्यूसर्स या फर्म्स कह सकते हैं। और इनपुट्स जैसे एग्जांपल में दिए हैं, जो फर्म होता है वो डिफरेंट टाइप के इनपुट्स यूज करता है, आइदर लेबर, मशीन, लैंड, रॉ मटेरियल, डिपेंडिंग कि हमें कैसा इनपुट चाहिए उसी हिसाब से हम लोग, कैसा आउटपुट चाहिए उसी हिसाब से हम लोग इनपुट यूज करेंगे। ओके, वेल डन। एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हम्म, यस सर। ठीक है आशा, समझ में आया आपको प्रोडक्शन का? हाँ। इनपुट इनपुट और आउटपुट के बीच का जो प्रोसेस होता है उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। और इनपुट्स के बारे में इन्होंने आपको बताया, इनपुट बेसिकली वो चीज होती है जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है। ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या आप कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज, रॉ मटेरियल जो कि आप यूज कर रहे हैं किसी चीज को बनाने की। ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पे मैसेज आ गया कि 5 मिनट में आपका ये जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। तो मैं बस एक क्वेश्चन जल्दी से पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे क्लोज करते हैं। इसमें एक चीज यस जो मैंने आप लोगों को क्लास के टाइम पे बताई थी कि फेज ऑफ ऑपरेशन, तो बेसिकली इन विच स्टेज प्रोड्यूसर वांट्स टू ऑपरेट और प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट, कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन अपना करना चाहेगा प्रोड्यूसर, एंड व्हाई? बताइए श्रेया, बताइए। आपने वो स्लाइड शायद इंक्लूड नहीं की है, बट इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एरिया, सो जस्ट ट्राई टू कवर इट इन योर नोटबुक आल्सो। कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा प्रोड्यूसर? जो हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी उसमें हमने बताया था कि इस स्टेज में प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर। क्यों? सर, सेकंड। स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड ना? यस सर, सेकंड स्टेज। हाँ हाँ, बताइए क्यों, यस क्या सर। क्या रीजन था उसका? वन फास्ट, 2 मिनट्स मोर। यस सर। क्यों प्रोडक्शन So, करना? हाँ बताइए a बताइए। producer can always increase his output. So, in this stage, a producer can always increase his output by reducing the units of variable factor. If a producer wish to produce in stage second, the marginal product and average of the variable factor both are diminishing, and और and वैशाली, आप बताएंगे इसका आंसर? and जस्ट वेट, वेट श्रेया, वेट। ओके फाइन। वैशाली बताइए। Yes, sir. डू यू नो द आंसर? No, sir. ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे? No, sir. चलिए, तो कल के एक्सप्लेनेशन के लिए आप रेडी है ना? कल आपको ऐसे प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, नाश्ता कर लीजिएगा सुबह। 40 मिनट्स, यू हैव टू स्पीक फॉर 40 मिनट्स कंटिन्यूअसली। सो बेसिकली प्रोड्यूसर जो है वो सेकंड स्टेज में ऑपरेशन इसीलिए करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट स्टेज में वो जब प्रोडक्शन शुरू करता है, जब पहली स्टेज होती है, तो उसको उसका टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बहुत उसको अच्छे मिल रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाए। अगर वो अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, और अगर वो अपने प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ाता है तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए वो रिस्क लेता है, चांस लेता है, और अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता है और सेकंड स्टेज में चला जाता है। सेकंड स्टेज में जब वो प्रोडक्शन करना शुरू करता है तो वहां पे उसको पता चलता है कि उस एक स्टेज के बाद पीपी और एमपी दोनों के दोनों गिरने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद वो सोचता है कि अगर वो प्रोडक्शन आगे बढ़ाएगा तो डेफिनेटली मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव फेज में चला जाएगा, तो उसको बहुत लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से प्रोड्यूसर जो है कि ना तो फर्स्ट स्टेज में अपना प्रोडक्शन रोकता है और ना ही थर्ड स्टेज में अपना प्रोडक्शन करता है।
वो बेसिकली सेकंड स्टेज तक ही रह जाता है, क्योंकि जो उसका टोटल प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको बेसिकली वो सेकंड स्टेज में ही कन्वीनियंट रिलायबल पोजीशन में नजर आते हैं, जहां से उसका प्रोडक्शन ठीक ठाक हो सके और वो एक नॉमिनल प्रॉफिट कमा सके। लास्ट स्टेज में अगर वो जाएगा तो उसको नेगेटिव उसको लॉस होने लगेगा। और फर्स्ट स्टेज में वो इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेकंड स्टेज में जा सकता है। दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन और द प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज द बेसिक रीजन। एम आई क्लियर? समझ में आ Yes, गया? sir. मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई कि नहीं आई? आवाज जा रही थी सब लोगों तक? Yes, sir, आ रही थी। हाँ, ओके, ठीक है। तो और कोई डाउट होगा तो हम व्हाट्सएप के थ्रू भी हम इसे और क्लियर कर लेंगे। अभी तो 2-3 दिन और चलेगा हमारा सेशन, जब तक सब लोगों का नहीं हो जाता, तो उस बीच में हम इसको दोबारा रिपीट करते रहेंगे। ठीक है? So I think Yes, sir. we have to close this session now because our time is up to finished. ठीक है? So thank you Okay, so sir. much. Thank you so much for today's wonderful session. Nice to have you here. Thank Thank you so much. thank you, sir.